Hello, welcome all of you in this YouTube channel series in which you are going to study of an important literary theory, post-colonialism in English literature. It is useful for undergraduate and postgraduate syllabus. Now, let us start. Post-colonialism के important facts and points. Post-colonialism, post-colonial theory is the critical academic study of the cultural, political and economic consequences of colonialism and imperialism, focusing on the impact of human control and exploitation of colonized people and their lands. उत्तर उपनिवेशवाद सिद्धांत दोनों एक ही बात है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणामों का महत्वपूर्ण एकेडमिक अध्ययन है जो उपनिवेश लोगों को उनकी भूमि पर मानव नियंत्रण और शोषण के प्रभाव पर केंद्रित करता है। The field started to emerge in the 1960s as scholars from previously colonized countries began publishing on the lingering effects of colonialism, developing a critical theory analysis of the theory, culture, literature, and discourse of usually European imperial power. कहते हैं कि यह क्षेत्र 1960 के दशक में उभरना शुरू हुआ था। याद रखें 1960 1960s, जब पहले उपनिवेश देशों के विद्वानों ने उपनिवेशवाद के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों पर प्रकाशन शुरू कर दिया था। आमतौर पर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्ति के इतिहास, संस्कृति और साहित्य और प्रवचन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विश्लेषण विकसित किया गया था। The term post-colonialism is also sometimes used to refer to the struggles of indigenous people in many parts of the world in the early 21st century. उत्तर उपनिवेशवाद शब्द का इस्तेमाल कभी कभी 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के कई हिस्सों में स्वदेशी लोगों के संघर्षों को संदर्भित करने के लिए किया गया जाता था। उस समय the leading theorists in the field are, याद रखें, होमी के भाभा, गायत्री स्पिवाक एंड Edward Said. Gayatri, full name Gayatri Chakravarti Spivak. The field is large enough for three to be several different subfields operating under its umbrella, such as feminist post-colonial studies and queer theory. यह क्षेत्र इतना बड़ा कि इसके अध्ययन अंतर्गत नारीवादी, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन और क्वेयर थ्योरी जैसे कई अलग अलग उप क्षेत्र शामिल और संचालित हो सकते हैं। क्वेयर थ्योरी के ऊपर पहले से ही एक वीडियो अपलोड है, कृपया वहां से आप देख सकते हैं। द ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज आर प्रीडोमिनेंटली एंग्लोफोन, याद रखना एंग्लोफोन, but a comparative dimension has blossomed in the past 2 decades so that there are now substantial francophone, lusophone, germanophone and Hispanophone, as well as many other language groups. Bodies are work in the area as well. कहते हैं कि उत्तर उपनिवेशिक अध्ययनों की उत्पत्ति मुख्य रूप से एंग्लोफोन से हुई है, लेकिन पिछले 2 दशकों में एक तुलनात्मक आयाम विकसित हुआ है, जिससे अब इस क्षेत्र में फ्रैंकोफोन, लूसोफोन, जर्मनोफोन और हिस्पैनोफोन साथ ही कई अन्य भाषा समूहों के काम के कर पर्याप्त निकाय के रूप में हो रहा है। The term was originally used by historians and economists in hyphenated from post-colonialism to describe the political and economic situation of nations following decolonization. Thus, it had a specific historian points of reference. इतिहास के बजाय इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मूल रूप में इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों द्वारा हाइफनेटेड रूप से उपनिवेशवाद के बाद में उपनिवेशीकरण के बाद राष्ट्रों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए किया गया था। इस प्रकार इसका एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ बिंदु भी था। It is in literary studies rather than history that the term has put down its deepest roots, becoming in the process of one of the most important intellectual movements in the entire discipline, easily outpacing deconstruction and new historicism, whose central tenets it has in any case absorbed. इतिहास के बजाय साहित्यिक अध्ययनों में इस शब्द ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली थीं। इस प्रक्रिया में यह पूरे अनुशासन में सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलनों में से एक बन गया था, जिसने आसानी से विखंडन विखंडन और नए इतिहासवाद को न्यू हिस्टोरिसिज्म को
पीछे छोड़ दिया था, जिनके केंद्रीय सिद्धांतों को इसने भी मामले में आत्मसात कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज ऑफर्स इटसेल्फ एज अ रेडिकल अल्टरनेटिव टू द ब्लेंड एंड आइडियोलॉजिकली नेव कॉमनवेल्थ लिटरेचर प्रोजेक्ट। उत्तर उपनिवेशिक यानी पोस्ट कॉलोनियल थियोरी खुद को नीरस और वैचारिक रूप से अनुभवहीन राष्ट्रमंडल साहित्यिक परियोजना के लिए एक क्रांतिकारी विकल्प के रूप में पेश करता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कम्स फ्रॉम Britain's former colonies in the Caribbean, Africa, and India. Many post-colonial writers write in English and focus on common themes such as the struggle for independence, immigration, national identity, elegance, and childhood. Means post-colonial literature साहित्य ब्रिटेन के कैरिबियन, अफ्रीका और भारत में पूर्वी उपनिवेशों से आता है। कई उत्तर औपनिवेशिक लेखक अंग्रेजी में लिखते हैं और स्वतंत्रता, प्रवास, राष्ट्रीय पहचान, निष्ठा और बचपन के संघर्ष जैसे सामान्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी स्टडी इज इन 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशंस लिटरेचर प्रेजेंट्स एंड एनालाइजेस द internal challenges inherent to determining an ethnic identity in a decolonized nation। जो पोस्ट कॉलोनियल या स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशंस की जो बात कहते हैं, तो साहित्य एक विउपनिवेश राष्ट्र में, जो साहित्य है वो विउपनिवेशवाद राष्ट्र में जातीय पहचान निर्धारित करने में निहित आंतरिक चुनौतियों को प्रस्तुत करता है और उनका विश्लेषण भी करता है। डीकोलोनाइज्ड नेशन मीन्स विउपनिवेशित राष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर है द स्टडी ऑफ द नेशंस हु कंटिन्यू फॉरगिंग अ पोस्ट कॉलोनियल नेशनल आइडेंटिटी टू एथनिक parochialism usually manifested as the demagogy of protecting the nation, a variant of the us and them binary social relation। उन राष्ट्रों का अध्ययन जो जातीय संकीर्णता के लिए उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रीय पहचान को बनाना जारी रखते हैं, जिसे आमतौर पर राष्ट्र की रक्षा के रूप में प्रकट करता है, जो हम और वे मीन्स अस एंड दैम, हम और वे लोग द्विआधारी मतलब बाइनरी सोशल रिलेशन, द्विआधारी सामाजिक संबंध का एक प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं। डीमेगोगरी का मीन्स होता है कि जन उत्तेजना या जन उत्तेजनकारी व्यवहार। यह एक ऐसा नेता या व्यक्ति होता है जो लोगों को भड़काकर या भावनात्मक रूप से प्रभावित करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। अक्सर सच्चाई को छुपाकर या भ्रामक बातें कहकर, अन्य संदर्भित अर्थ दिखाकर एक ऐसा नेता आमतौर पर लोगों को भड़काकर या गुस्से का इस्तेमाल करके दिखाता है। जन उत्तेजक के रूप में भड़क कर लोग उत्तेजित होकर दंगा फसाद करने लगते हैं। इस शब्द को बोलते हैं डीमेगोगरी। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी इज अ लिटरेरी थियोरी और क्रिटिकल अप्रोच दैट डील्स विद लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन कंट्रीज दैट वर वंस आर नाउ कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनीज ऑफ अदर कंट्रीज। उत्तर उपनिवेशिक या पोस्ट कॉलोनियल थियोरी सिद्धांत या आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो उन देशों में निर्मित साहित्य से संबंधित है जो कभी दूसरे देशों में उपनिवेश के रूप में काम करते रहे हैं। इट मे आल्सो डील विद लिटरेचर written in or by citizens of colonizing countries that takes the colonies or their people as its subject matter। ये उपनिवेशी देशों में यानी कॉलोनियलाइजेशन जो देश हैं या उनके नागरिकों द्वारा लिखे गए साहित्य से भी संबंधित हो सकता है, जो उपनिवेशों या उनके लोगों को अपने विषय के रूप में लेता है। The theory is based around concepts of otherness and resistance। यह सिद्धांत अन्यता और प्रतिरोध की अवधारणाओं पर आधारित होता है। ये जो इस कॉन्सेप्ट पर है, अदरनेस दूसरी चीज़ों के ऊपर एंड रेजिस्टेंस मीन्स अवधारणाओं के ऊपर ये आधारित होता है। वो भी कौन सी? प्रतिरोध वाली अवधारणा है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एग्जामाइंस द लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज, फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ पावर, डायनामिक्स, आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस एंड कल्चरल heredity, while also analyzing the ways in which colonized people have been marginalized and how they have responded to these conditions। देखा जाए कि अध्ययन के क्षेत्र में पोस्ट कोलोनियलिज्म पूर्व जो
कोलोनियलिज्म, जो फॉर्मली कोलोनियलिज्म लोग थे, कोलोनाइज्ड सोसाइटीज़ थीं, उन स्थायी प्रभावों की जांच करता है। शक्ति, गतिशीलता, पहचान, प्रतिरोध, संस्कृति संकरता के विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही उन तरीकों का भी विश्लेषण करता है जिनसे उपनिवेशित लोगों को हाशिए पर रखा जाता है और उन्होंने इन स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी, ये भी दिखाया जाता है। कल्चरल हाइब्रिडिटी मीन्स होता है सांस्कृतिक संकरता, मिलावट। कल्चरल हाइब्रिडिटी होता है सांस्कृतिक संकरता से तात्पर्य है विभिन्न परंपराओं के सांस्कृतिक तत्वों के सम्मिश्रण और विलय से, जिसके परिणाम स्वरूप नए सांस्कृतिक रूप और पहचान बनता है, जो अक्सर वैश्वीकरण, प्रवास और संचार द्वारा एक आकार लेती हुई दिखाई पड़ती है। It analyzes the power imbalance between colonizers and colonized, exploring how colonial ideologies and structures maintained dominance and how colonized peoples resisted or adapted to these conditions. यह उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित लोगों के बीच शक्ति असंतुलन का विश्लेषण करता है। यह पता लगाता है कि कैसे औपनिवेशिक विचारधाराओं और संरचनाओं ने प्रभुत्व बनाए रखा और कैसे उपनिवेशित लोगों ने इन स्थितियों का विरोध किया या उनके अनुकूल खुद को ढाल लिया। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एग्जामाइन्स हाउ कॉलोनियलिज्म शेप्ड the identities of both colonizers and colonized, including the creation of racial and cultural hierarchies and the ways in which colonized peoples negotiated their identities in the face of colonial domination. उत्तर उपनिवेशवाद में पोस्ट कॉलोनियलिज्म जांच करता है कि कैसे उपनिवेशवाद ने उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित लोगों दोनों की पहचान को आकार दिया, जिसमें नस्लीय और सांस्कृतिक पदानुक्रमों का निर्माण और उपनिवेशित लोगों ने औपनिवेशिक वर्चस्व के सामने अपनी पहचान के लिए समझौता भी किया। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी, particularly through the work of Edward Said, critiques the Eurocentric and often stereotypical representation of the Orient non-Western cultures as a way of justifying colonial domination. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो सिद्धांत है विशेष रूप से एडवर्ड सईद के काम के माध्यम से आया। औपनिवेशिक वर्चस्व को सही ठहराने के तरीके के रूप में ओरिएंट मीन्स गैर पश्चिमी संस्कृतियों के यूरोसेंट्रिक और उत्तर रूढ़िवादी प्रतिनिधित्व की आलोचना करता है। इट एम्स टू डिकंस्ट्रक्ट द कॉलोनियल डिस्कोर्सेस दैट लेजिटिमाइज्ड कॉलोनियलिज्म इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेस, कल्चर एंड हिस्ट्री and to provide a space for marginalized voices to be heard. इसका उद्देश्य उपनिवेशवाद यानी कि इसका उद्देश्य जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को वैध बनाने और औपचारिक रूप से प्रवचनों का या बनावट एक विघटन प्राप्त करना है, जिसमें नस्ल, संस्कृति और इतिहास से संबंधित प्रवचन शामिल होते हैं, जो ये प्रोवाइड किए जाते हैं कल्चर थ्योरी के जितने भी वॉइसेस की जो आवाज़ें दिखाई जाती हैं, ये सारी आवाज़ों को सुनने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। It has had a significant impact on literature and art, with writers and artists from formerly colonized countries using their work to explore the themes of colonialism, identity and resistance. इसका साहित्य और कला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसमें पूर्व उपनिवेशित देशों के लेखक और कलाकार उपनिवेशवाद, पहचान और प्रतिरोध के विषयों का पता लगाने के लिए अपने काम का उपयोग करते रहे हैं। It is said Edward Said is first and foremost writer of post-colonialism. Edward Said is widely considered the father of post-colonial studies for his influential work Orientalism, which critiques Western representation of the East and its impact on post-colonial societies. एडवर्ड सईद को उनके प्रभावशाली कार्य ओरिएंटलिज्म के लिए व्यापक रूप से उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों का जनक कहा जाता है, जो पूर्व के पश्चिमी प्रतिनिधित्व और उत्तर औपनिवेशिक समाजों पर उसके प्रभाव की आलोचना भी करते हैं। Said's book Orientalism is a seminal work in post-colonial theory, arguing the Western perceptions of the East are not objective but rather shaped by power dynamics and colonial discourse. सईद की पुस्तक जो ओरिएंटलिज्म के नाम से है, सिद्धांत में एक मौलिक कार्य है जिसमें तर्क दिया है कि पूर्व के बारे में पश्चिमी धारणाएं वस्तुनिष्ठ नहीं हैं, बल्कि सत्ता की गतिशीलता और औपनिवेशिक प्रवचन द्वारा आकार ले देती हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स ले लेती हैं, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं होती। ईस्ट आर नॉट ऑब्जेक्टिव बट रादर शेप्ड बाय पावर डायनामिक्स एंड कॉलोनियल डिस्कोर्स। वाइल अदर थ्योरिस्ट्स लाइक फ्रेंच फैनन, इनको बोलेंगे फ्रेंच फैनन भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर रहे, M.A. सेजियर रहे,
also made important contributions. Said work is often seen as the foundation of the field of post-colonial studies, which examines the cultural, political, and economic legacies of colonialism. जबकि फ्रांस फैनन और उनके एमी सिसियर नाम के राइटर जैसे अत्यंत सिद्धांतकारों ने भी और भी अन्य सिद्धांतकारों ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सईद के काम को अक्सर उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र की नींव के रूप में देखा जाता है, जो उपनिवेशवाद की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विरासतों की जांच करता है। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पोस्ट कोलोनियलिज्म राइटर: एडवर्ड सईद, होमी के भाभा एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। एडवर्ड सईद को फादर ऑफ पोस्ट कोलोनियल थियोरी माना जाता है। सेकेंड, गायत्री स्पिवाक। Gayatri Chakravarti Spivak's work include books, articles and translations books. As फर्स्ट बुक है इनकी द पोस्ट कोलोनियल क्रिटिक 1990 में, दूसरी है आउटसाइड इन द टीचिंग मशीन 1993 और तीसरी है अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कोलोनियल राइटर रीजन 1993। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ये इंडियन स्कॉलर्स थी, मीन्स हैं भी, और इनको एक होल वर्ग प्राइज़ 2025 यानी 2025 को मिलने वाला है, और द नोबेल इक्विवेलेंट फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस फ्रॉम नॉर्वेजियन क्राउन प्रिंस हाकुन ने क्या किया इस सेरेमनी में जून 5 जून 2025 को इनको एक होल वर्ग प्राइज़ मिलेगा जो लगभग 4.6 करोड़ रुपए का है। इस टाइम ये 82 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी हैं और ये प्रोफेसर इन द ह्यूमैनिटीज़ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में हैं, काम कर रही हैं। नेक्स्ट है होमी के भाभा। होमी के भाभा इज एन इंडियन क्रिटिक एंड थ्योरिस्ट, करेंटली अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। Bhabha has also served as an editor of public culture and academic journal by Duke University Press. He occupies a significant space in post-colonial criticism that has profoundly influenced the approach to understand migration, culture, nationality and post-colonial identity. की कॉन्सेप्ट ऑफ भाभा ने अपने की कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे, जिसमें उन्होंने मिमिक्री, हाइब्रिडिटी, थर्ड स्पेस के रूप में इन्होंने 3 अपने की कॉन्सेप्ट दिए। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आइडेंटिटी द रियल मी 1987 में लिखा था इन्होंने। नेशन एंड नरेशन करके एक बुक है जो 1990 में लिखी थी। द लोकेशन ऑफ कल्चर के नाम से इन्होंने 1993 में लिखी थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।